السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تو میری امید ہے۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ پاک نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے۔ بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ دل کا بوجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم اور کرم سدا آپ کے ساتھ ہو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو جوال نہیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں بسیت اور برکت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ جو مصیبت اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ سارے دکھ تین الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اللہ پاک آخری امید نہیں، باعث سہارا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ پاک کی تو ناراضگی بھی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ درد میں جب بھی خود کو پاتی ہوں، سب سے قریب اللہ پاک کو پاتی ہوں۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ دے میرے مولا، اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے، اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہر لذت کی انتہا واجاری ہے، سوائے ذکر اللہ پاک کے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ دے جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے باتیں کرو۔ اپنے دکھ درد کا مداوت اسی سے مانگو، وہی رحیم وہ کریم ذات ہے۔ اللہ پاک کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ پاک ہے اور انتہا بھی اللہ پاک ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پاک پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اللہ پاک مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ جب تم جان جاؤ گے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پاک مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والا، اے میرے اللہ پاک، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ پاک سے رجوع ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو تم کو اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی مصلحت سمجھنے والوں کے دل کبھی جدی نہیں ہوا کرتے۔ ہر بات میں اللہ پاک کا ذکر کرو گے
تو ہر کام میں اللہ پاک کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بے چین ہی رہیں گے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ دل کیوں یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ پاک ہے نا، آپ اس سے باتیں کریں، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا۔ یا اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور جب اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ پاک مت والا عازی والی، عبادت بندگی والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہر کام کرتے وقت اللہ پاک کو اپنے قریب سمجھو، گناہوں کی عادت چھڑا۔ میرے مولا مجھے نیک انسان بنا، میرے مولا جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا۔ میرے مولا جس وقت بھی اللہ پاک کو پکارو تو ایسا ہے اللہ پاک صرف میرا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ پاک کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ پاک کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے سر سے بچا جو بجا تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پر ہیں۔ وہی تو میرا اللہ پاک ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک سے پکارا تو غذا دی، پیاس سے پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا راہ بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اللہ پاک تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ میرا اللہ پاک دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو، نہیں جانتی سخیرہ ہے یا کبیرہ، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے فرما دیتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ پاک کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ پاک کی آپ پر رحمت اور کرم میں آپ لوگوں کے لیے آسائش کرے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ آپ مخلی رہیں یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ پاک دے گا۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ پاک کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی میں بسر ہو۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پر سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ پاک دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، یا اللہ پاک مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ عام مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ پاک کی ادائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے جس نے سکھ
जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए, जवानी बार बार नहीं मिलती, गुनाह के दौरान मौत न आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। लोगों का जर्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की खामी को अपने अंदर छुपा सके। हम दुनिया के इस दौर से ताल्लुक रखते हैं जहां लोगों को हमारी तकलीफ से बस उतनी सी देर तक की वास्तगी होती है जब तक उन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई सामान नहीं मिलता, और आखिर में हम होते हैं हमारी तकलीफ और अल्लाह पाक गम से तो जिंदगी की लज्जत होती है। और इम्तिहान अल्लाह पाक उन्हीं का लेता है जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। जानते हो क्यों? ताकि वो उन्हें चुन ले और अपना बना ले, और जिनको वो चुन लेता है उन्हें किसी और का नहीं होने देता। इसलिए वो उन चीजों को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे और उसके दरमियान फासला हायल करती हैं, और यूं इतम में वो रह जाता है और तुम रह जाते हो। कुछ चीजें तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह पाक उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उन चीजों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ का बास होता है। इसलिए अल्लाह पाक तुम्हें मुस्तकिल अजियत से बचाने के लिए आर्जी तकलीफ देता है। हर शय तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बनकर नहीं आती, क्योंकि तुम उन बातों को कभी नहीं समझ सकते जो अल्लाह पाक जानता है। और अगर तुम्हें उनकी हकीकत का पता चल जाए जिन्हें अल्लाह पाक तुमसे दूर कर देता है, तो तुम कभी उनके लौट आने की तमन्ना ना करो। कुछ लोग और कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आजमाइश के तौर पर आती हैं, और आजमाइश तो बस वक्त की होती है। इसलिए जब आजमाइश का वक्त खत्म होता है तो अल्लाह पाक उनका ख्याल भी तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेसुकून रखता है। जब तुम अपनी पसंद के रास्तों पर चलकर नतीजा देख लेते हो तो जिंदगी से खफा होने के बजाय अल्लाह पाक के पसंद के रास्तों पर चल दिया करो, क्योंकि जो रास्ते तुम्हारे लिए चुनता है वो तुम्हारे मुंतकिए गए हजारों रास्तों से बेहतर होता है, और जिस मंजिल तक वो तुम्हें लेकर जाता है उस तक तुम उसकी मदद के बगैर कभी नहीं पहुंच सकते। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वो वहां से अता करता है जहां से मिलना मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा मुकद्दर है, और तुम जो चाहो तो हालात को भी बदल सकते हो। तुम आज जहां भी हो बेमकसद नहीं, बहुत सी मसलियतों और हिकमतों के बाद तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तो अगर जवाब अब तक नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि जवाब अब कभी नहीं आएगा। जहाँ इतना सफर तय कर लिया है वहाँ कुछ मसाफत और सही, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा सब्र और सही। तुम्हारे लिए कोई चीज भले कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पाक के लिए तो बस एक उनकी बात है। अभी हालात मुश्किल हैं, लेकिन यकीन रखो हालात बदल जाएंगे, और मोजिज़े तो यकीन रखने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्तों में डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और तड़पते दिल का सुकून बन सके। अल्लाह पाक तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। दुआ वो सब्र का दरिया है जो हर प्यास बुझा सकता है। दुआ बगैर लफ्जों के अल्लाह पाक को दिल का हाल सुना सकती है। दुआ बिछड़ जाने वालों को दोबारा मिलवा सकती है। दुआ बंद रास्तों से ही नया रास्ता बना सकती है। तुम जो चाहते हो रब कबूल कर ले। तुम्हारी चाहते खुद से पूछो, क्या तुम उसकी चाहतों का एहतराम करते हो? अल्लाह पाक को हमारी नमाज की जरूरत नहीं, उसके आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने हमें सजदे का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि उसे पता था कि हमें उसकी कितनी जरूरत होगी, और जब भी जरूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदों में। और कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमें अल्लाह पाक अपने आगे सजदा रेज होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, क्या होता हमारा। और हम तो उसके आगे कभी नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो ना चाहे तबील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान को कुछ देना चाहता है तो उसके अंदर वो चीज पाने की ख्वाहिश पैदा कर देता है। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है।
जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं की तरतीब देने का हुनर सिखा देता है, और जब वो मेहरबान होता है तब वो सारी हकीकत तुम पर आया कर देता है। फिर वो या तो तुम्हारी रजा में राजी हो जाता है या तुम्हें अपनी रजा में राजी कर लेता है। अल्लाह पाक पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं होता, तो यकीन रखो उस पर वो भी मिल जाएगा जो आप कब से मांग रहे हो। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिंदगी के अक्सर मकामात ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही क्यों, और बेशक ये फितनी तौर पर होता है, बहुत थक जाता है इंसान। मगर एक बात याद रखिए कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। जिस सुकून की तलाश में तुम औरों के पीछे भाग रहे हो वो सुकून तुम्हारी अपनी जात में अल्लाह पाक ने छुपा रखा है। तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात की तकमी हो, और जिस रोज तुम खुद को ढूंढ लोगे उस रोज तुम्हें अल्लाह पाक मिल जाएगा। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा, और इस सारी तकी का मताबा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। और फिर जब तुम अल्लाह पाक की रजा को अपनी रजा मान लेते हो फिर अल्लाह पाक भी तुम्हारे दिल को सुकून बख्श देता है। हकीकत को कबूल करना सीखो, हालात जैसे भी हो अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि एक वही तो है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दे उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफर है। जुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में राड़े डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती, वो बहुत जल्द तुम्हारे दुआओं पर कुन फरमाएगा। यह देर फक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिज्क अल्लाह पाक के पास है तो तुम रिज्क तलाश ना करो, बल्कि अल्लाह पाक को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज्क है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में हो तो दिल की हिफाजत करती है। जो लोग आपके काबिल नहीं उन्हें आपसे दूर रखती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह पाक देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह ना समझना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था। बेजुबान से भी हमदर्दी करना ना भूलो। यह बख्श लफ्जों की दुआएं देते हैं। हजरत अली ने फरमाया उस चीज का गम ना करें कि अब आपने गलत इंसान पर मोहब्बत जाया कर दी, क्योंकि अल्लाह पाक वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस लौटा देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह पाक कभी तो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। माफिया तो गलतियों की होती है, अजियतों का तो मकाफत अमल होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें।
जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है, इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रह जाता है। और जब अल्लाह पाक की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी इंसान व आसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआ को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह पाक तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से नफरत करते हो और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से न निकले। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो यह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। इज्जत उतनी ही दो जितनी के लोग कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तकलीफ में सब्र से काम लो क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जिसको बड़ा मुकाम देना हो तो अल्लाह पाक पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां उसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं। फिर वहां से अल्लाह पाक रास्ते खोलकर बंदे को किसी मुकाम पर पहुंचाता है ताकि उसे खूब समझ आए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अकल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की उसमें खास मेहरबानी शामिल है। जिसे खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छिन ना जाएं, तो वो यह सोचे कि मुझे जो सुख पहुंच रहा है अल्लाह पाक की तरफ से पहुंच रहा है और अल्लाह पाक असबाब का मोहताज नहीं। जब देना चाहेगा देता रहेगा। जिंदगी में हकीकी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी यह सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह पाक को राजी करना है, बाकी जिसे राजी होना हो तो हो जाए। हर कोई इस दुनिया में मुसाफिर है। यह न सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग भी मुसाफिर हैं, यह भी चले जाएंगे। जितना बुराई से बच सकते हो बचो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून में रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नियमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है। जो अल्लाह पाक तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। अल्लाह पाक ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करती हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक हो। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। ना उम्मीद मत होना कभी अल्लाह पाक की रहमत से, वो चाहे तो खिला देता है फूल सहरा में भी। सब्र से रहमत का इंतजार कर,
जो चीज तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए ही है और यह देर हिकमत पर मबस होती है। अल्लाह पाक मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलील पर भी तुम्हें सही तस्लीम नहीं करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। जिंदगी आजमाइश का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। वक्त साबित कर ही देता है कि रब के फैसले महज गलत कभी भी नहीं हो सकते। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, मगर नजरिए का नहीं। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही रब परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। बस तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जब यकीन अल्लाह पाक की जात पर हो तो हर चीज की परवाह करना छोड़ दिया करो, क्योंकि वो जात किसी को भी मायूस नहीं करती। वफादारी बहुत कीमती सिफत है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीदें ना रखें। अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खूब कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। पूरी कायनात में कोई किसी का उतना इंतजार नहीं करता जितना रब्बे करीम अपने बंदे की तौबा का करता है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों की साजिशें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि कुरान के बाद अल्फाज हैं और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। दोनों सूरत यकीन की है। कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ देता है। लोगों ने कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक एक इधर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से फट जाए। सबसे गुजर कर अल्लाह पाक तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। मोजिज़ों के दरवाजे सब्र की चाबी से खुलते हैं। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम सवार देता है, और जिसका काम रब सवार दे उसे कोई बेकार नहीं कर सकता। मैंने इस दुनिया में बहुत ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा सब कुछ है। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह पाक का खास करम है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करने की आदत है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आजीज कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर चाहता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता। रिज्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। जब अल्लाह पाक किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता की कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं
तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मजस बना रखा है। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल देता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। अल्लाह पाक के प्यारों सुनो, अगर अल्लाह पाक का कुर्ब चाहते हो तो फिर से अखलाक को संवार लो। रोटी खाकर लफ्जों वाला शुक्र तो करो, सब करते हैं। अपनी रोटी किसी के साथ बांटकर शुक्र नसीब वाले करते हैं। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो, हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। रब हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मोहब्बत तो यह है जब रब कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आंख की वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियां हो या सुकून हो। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक का होना किस कदर बेहतर है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक बोझ जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक बोझ जो तुम्हारी जिंदगी बदल लेते हैं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। सीखने की चीज इज्जत करना और करवाना है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, रब तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता उसे चाहिए सुकून से नमाज पढ़ा करें। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। कुछ आजमाइश और लात ऐसी भी होती है जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद होते हैं। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। यह आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से बचाती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तरफ देख कर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करना। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह पाक तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नियत या तुम्हारी मखनी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देगा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दें, कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यही मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा?
जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तरबियत में इंकस ना पैदा कर पाया हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से दिल की बातें करते हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं, तौबा तो बजाते खुद एक इबादत है, जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बुराई दुआ पर से एतमाद उठा देती है और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो रब के करीब नहीं जा सकता। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामयाबी बेहतर है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं। हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते मगर सब्र रखें क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा गफूर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है, बस सब्र करें। वो निभाने वाली जात नवाजेगी, वो नवाजने वाली जात नवाजेगी। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएगी। सब्र की एक शर्त होती है, यह सिर्फ उसी मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई शिकवा ना हो। मैंने पूछा कब तक सब्र करना पड़ेगा मुझे? जवाब आया तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब ही हो। किसी का मुसलसल सब्र आजमाना भी गुनाह है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते और बाद जब मकाफत अमल पर आ जाए तो इंतजार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। सब्र से रहमत का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है और देर सिर्फ हिकमत पर मवस होती है। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो तो सब्र कर और अल्लाह पाक की तरफ से कुसादगी का इंतजार कर। जिस शख्स को अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो जिंदगी में किसी भी वाक़े के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता। जिंदगी की किताब के सब राग हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कर लेना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। नसीब और मुकद्दर सब्र से मिलता है। सब्र रखें, ना ही धूप रहती है ज्यादा देर ना ही छाँव। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सब्र का रास्ता शुरू में किसी तौर पर आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कामिल रखें। सुकून के साथ बेहतरीन बादल भी मिलता है। सब्र रखो, वो दिन भी आएगा जब दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद, यकीन। तुम्हें गिराने वाले एक दिन खुद गिरेंगे। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जो शख्स सब्र करता है वो आखिरकार अपने मकसद को पा लेता है। कुछ लोगों की खामोशी उनका सब्र होता है। सब्र रखें, बंदे कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। सब्र, खामोशी और लाताल्लुक बेहतरीन इंतकाम है। सब्र करना, कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त ना हो इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है मगर इसका फल, उसका फल मीठा होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। वो रब आहटे भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। सब्र रख, खुशियां नहीं, ठहरे तो गम की क्या औकात है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता।
वो बस सब्र आजमाता है। सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रहे हों। सो बेहतर है सब्र करो। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है। यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो। खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो। अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी। कहने से पहले सोचो, करने से पहले सीखो, परखने से पहले समझो और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो। मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह न हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना, और अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो। अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को ना मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान ना हुआ करो, यह तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे बसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में घिरे थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ अंदोजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए। वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिम वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।